منٹ میں۔ السلام علیکم برادرس. وعلیکم السلام اشفاق بھائی، آپ عثمان کی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز جو ہے آ رہی ہے، آپ کائنڈلی کنٹینیو کریں۔ بس سوری آپ لوگوں کے ٹائم کا، سوری آپ لوگوں کا بہت بڑی مہربانی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. میرا نام اشفاق احمد ہے. کرنٹلی ایم ایس سی ویہیکل انجینئرنگ کر رہا ہوں بی ایم ای سے. اسی سال آیا ہوں اور میں نے بیچلر بی ایس سی میکینیکل انجینئرنگ یو ٹی پشاور سے کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں جاب بھی کی ہے. زیادہ تر لڑکوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈفرینس ہوتا ہے، اسٹڈی گیپ ہوتا ہے تو ہمیں ایڈمیشن ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. تو یہ پرابلم آپ لوگوں نے بیچلر کی ہو، ایف ایس سی کی ہو، پھر بھی ان کو ویزے لگ گئے تھے، اس کا مسئلہ نہیں ہو. تو آج ہم بات کرتے ہیں اسکالرشپ پہ. اس کے لیے آپ لوگوں کو میں اسٹیپ وائز آپ لوگوں کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا. بہت ایزی پروسیس ہے. یورپ میں انٹر ہونے کے لیے اسپیشلی میڈیکل انجینئرنگ اور تقریباً ہر فیلڈ ہوتا ہے. کوئی بھی اس طرح فیلڈ نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ یہاں پہ سیٹیں نہیں ہوتی ہیں. اس کے لیے آئیلیٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی آئیلیٹس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر کنٹری کے اپنے پچھلے سال انہوں نے ڈبل کی تھی. اراؤنڈ اباؤٹ 300 to 400 سیٹیں ہوتی ہے اور اس میں بیچلر کی کچھ ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایم ایس کے ریشو کم ہوتی ہے، پھر پی ایچ ڈی کے اور کم ہوتی ہے. تو بیچلر کے لیے ایف ایس سی ضروری ہے اور ماسٹر کے لیے بیچلر ضروری ہے اور پی ایچ ڈی کے لیے ماسٹر ضروری ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ آپ پاکستان میں ہر سال 7 سے 10 تقریباً یو ایس ٹیسٹ وہ ارینج کرتے ہیں. ایچ ای سی آپ لوگوں نے جانا ہے ایچ ای سی پہ، ای ٹی سی ایچ ای سی. وہاں پہ آپ لوگوں کو یو ایس سیٹ کے اچھا، سب اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پورے اپنا سال کا مائک اسکیجول آن مل کر جاتا ہے کہ جنوری میں یہ ہوتا ہے، پھر فروری میں ہوتا ہے، پھر اب مارچ میں ہوتا ہے. اس طرح تقریباً 7 سے 10 ہر سال ٹیسٹ ہوتے ہیں یو ایس سیٹ کی. اور اشفاق بھائی آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے۔ ماسٹر کے لیے ہیٹ ہوتی ہے اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی وہی ہیٹ ہوتی ہے. تو میکسیمم ہاں تو مسئلہ چیز سے لوگ واقف نہیں تھے ہیں. ابھی اسٹارٹ ہو گئے ہوتا ہے آپ لوگوں کا. تو دعا ذرا آپ کائنڈلی اپنا کیمرہ آف کر دیں۔
अच्छा इशफाक भाई, आप अपना कैमरा ऑफ सॉरी कर दें। फॉर कैमरा ऑफ कर दें बेशक, क्योंकि वो इसके लिए। सर उस्मान, आवाज़ आ रही है अभी? जी जी, अभी आवाज़ आपकी ठीक है, क्लियर। आप हेलो काइंडली, उस्मान। हाँ जी, आप दोबारा से थोड़ा स्टार्ट कर दें क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा। उस्मान, आवाज़ आ रही है? जी इशफाक भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, यस। तो अभी आप हाँ। दोबारा से थोड़ा अब स्टार्ट करें। जो आपने बताया था ना, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही थी। सॉरी आप लोगों के लिए, ये पता नहीं है आप लोगों के नेट में इशू, इधर तो इतना इशू नहीं होता है। सॉरी इसके लिए। ठीक है, आप तो कंटिन्यू। आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को ये होता है कि ये यूएसए टेस्ट देने पड़ते हैं। अभी इस ईयर की एक यूएसए टेस्ट रह गई है, वो फरवरी में है। अब ये 7-8 यूएसए में अगर किसी बंदे ने 1 दिया हो, किसी ने 2 दिए हो, किसी ने 5 दिए हो, उसमें जिसके जितने ज्यादा मार्क्स आए वही काउंट होते हैं। कोई इसमें ये नहीं होता है कि एफएससी में आपके मार्क्स इतने आए, मैट्रिक में आप लोगों के इतने मार्क्स आए और बैचलर में ये जीपीए, ये मार्क्स, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ टेस्ट काउंट होता है। अब मोस्टली ये होता है कि हमारे जब एफएससी से लड़के अक्सर में मेडिकल में रह जाते हैं, 2 जगहों पे जाते हैं, या मेडिकल में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं। मेडिकल में जो लड़के रहते हैं तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इधर नर्सिंग है, डेंटिस्ट्री है, एमएलटी है, और ये मेडिसन एमडी भी है, मेडिकल ये भी है। इस दफा उन्होंने एक ये शर्त रखी है मेडिकल के लिए कि ये मेडिकल जरूरी होगा, एक्सेप्टेबल होगा हंगरी का एमडी के, उन्होंने एमडी केट पास किया हो। सो आप लोगों को एमडी केट के मेरे ख्याल में 110 मार्क्स है पासिंग। सो 55% से आगे आप लोग तकरीबन हर किसी के आए होंगे, वो इतना मसला नहीं होता है। फिर भी देना पड़ता है। अब पिछले लोगों के लिए ये कंडीशन नहीं था, इस दफा उन्होंने ये कंडीशन रखी है। दूसरी चीज, अगर मेडिसिन में भी थोड़ा ये इधर कंपटीशन होता है क्योंकि हर मुल्क के कुछ स्पेसिफिक सीट्स होते हैं। तो इसके अलावा आप लोग नर्सिंग में भी जा सकते हैं। नर्सिंग बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। साथ साथ में एमएलटी है, डेंटिस्ट्री है, फार्मेसी है, ये मेडिकल के जितने भी फील्ड्स है वहीं पे यहाँ हंगरी पे होते हैं। साथ साथ में दूसरी चीज इंजीनियरिंग के तो मेरे ख्याल में फील्ड इनफाइनाइट है इधर इंजीनियरिंग वाले के, स्पेशली कंप्यूटर, आईटी, और ये आर्ट्स के भी होते हैं, सारों की सीटें। तो आप लोगों ने ये करना है सबसे पहले कि आप लोगों ने ये स्टेट टेस्ट देना है। ये फरवरी में एक रहता है, ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। अब 2 साल के लिए जो वैलिड होता है, जिसमें जिसके मार्क्स ज्यादा आगे, फॉर एग्जांपल पंजाब में एक बंदे के 90 एक टेस्ट में आए हैं, बाकी टेस्ट नहीं दिए। किसी दूसरे ने 70 लिए, 5 टेस्ट दिए, लेकिन वो 90 से ऊपर नहीं गया, तो वो 90 वाला सेलेक्ट हो जाएगा। और साथ साथ में ये फाटा के अपनी सीटें, फाटा के वो हो जाएंगे, केपी के अपने साइड सीटें वो हो जाएंगे। तो ये होता है। अब ये सेट टेस्ट आप लोगों ने दिया, साथ साथ में ये अभी 15 तारीख से ये एडमिशन ओपन है और 15 जनवरी तक ये ओपन रहेंगे। इसमें आप लोगों ने जाना है सीधा HEC साइट पे। HEC साइट में 2 लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड या स्कॉलरशिप सेंटर, स्कॉलरशिप जो काउंटर है उस पे जाना है, सेक्शन पे जाना है। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट में उन्होंने बड़ा लिखा है स्टेप हंगेरिकन स्कॉलरशिप 2024 एंड 2025, ये उन्होंने लिखा होता है। तो उस पे जब ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप लोगों के लिए जो साइट है वो ओपन हो जाएगा। और साइट में जब ये ओपन हो जाता है साइट, तो आप लोगों ने वहाँ पे फिल्टर अपनी, और सबसे बड़ी उन्होंने वो पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे फेसबुक वगैरह के रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, कोई पैसा फ्री होता है, फ्री आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया। और रजिस्टर करने के बाद आप लोगों ने उधर सर्च लिखा होता है, अपना फील्ड सर्च करना है। 2 ही ऑप्शन आप लोगों ने देने हैं, 2 यूनिवर्सिटी के ऑप्शन देने हैं। तो ट्राई करें कि वो अक्सर पहले वाले ऑप्शन को आप में सेलेक्ट करते हैं। और इतना मसला नहीं होता है कि पहले में सेलेक्ट नहीं हो तो दूसरे में सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन पहला वाला वो लिखते जो आप लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी हो। मेडिकल वाले 3 यूनिवर्सिटी है मोस्टली, सेमन वाइल होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेज है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेक्से और यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन है। ये 4 यूनिवर्सिटी होते हैं मेडिकल वाले ज्यादातर ये। और जो
सेमन वाइल्स है, ये सेज है, ये इधर बुदापेस्ट में होता है। बुदापेस्ट एक कैपिटल है और यहाँ पे आप लोगों को पार्ट टाइम के बहुत से चीज़ें मिल जाते हैं, यानी काम वगैरह होते हैं। डिब्रेशन इसके बाद आता है। डिब्रेशन थोड़ा दूसरा बड़ा शहर है, उसमें भी होते हैं, लेकिन ये जो मेशकोल हो गया, ये जो दूर दूर के शहर है, उसमें आप लोगों को फिर वो पार्ट टाइम के वो इस तरह है जैसे देहात में जाए, तो उसका इतना टेंशन ना लो, उसमें मत जाइए। ये बुदापेस्ट और ये डिब्रेशन यही सेलेक्ट करो ज़्यादातर। तो मेडिकल वाले फिर जब आप लोगों ने सिलेक्शन की, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की, अपने फील्ड की सिलेक्शन की, उसमें आप लोगों से ये एफएससी वाले अपने कॉलेजों से हर कोई एक दो टीचरों से दो रेफरेंस लेटर बनवा ले और एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा ले। और सेम बैचलर के लिए भी यही है, जो मास्टर के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी है कि दो रेफरेंस लेटर बनवा ले, एक वो बनवा ले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये यूनिवर्सिटी देते हैं और कॉलेज देते हैं, डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट देता है। और साथ साथ में फिर जो ये चीज़ें, वो एक छोटी सी सीवी, वो जनरल सीवी बना ले, इतना मसला नहीं है। वो एक एसओपी, वो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा, उसमें तकरीबन स्टेट ऑफ पर्पस और ये कवर लेटर, ये सब कुछ लिखा होता है। सिर्फ आप लोगों ने एडिट करना है, बस वही पुट करना है, अपने नाम लिखने हैं, अपने इलाके लिखने हैं, बाकी इतना मसला नहीं है। वो मैं आप लोगों के साथ वो पूरा एक फाइल शेयर करूंगा। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहली सिलेक्शन आप लोगों की अपनी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में यूएसएट से है। यूएसएट में आप लोगों ने मार्क्स लेने हैं और यहाँ पे एडमिशन करनी है, ये स्टिपेंडियम हंगेरिकन साइट पे। जो ही आप लोग स्टिपेंडियम हंगेरिकन पे अप्लाई कर ले और यूएसएट के ये तकरीबन 28 फरवरी तक वो आप लोगों के मार्क्स आप लोगों के नाम भेज देते हैं। वेटिंग के भी भेज देते हैं और जो मेरिट पे है वो भेज देते हैं। फिर वहां से आप लोगों को पता चल जाता है कि मैं या वेटिंग पे हूँ या उस पे हूँ, वो ये पता भी नहीं चलता है पहले। फिर वो आप लोगों को एक्सेप्टेंस देते हैं यूनिवर्सिटी वाले। इससे पहले कुछ यूनिवर्सिटी ये होते हैं कि आप लोगों से कहते हैं कि हमने आप लोगों से टेस्ट लेनी है और इंटरव्यू लेनी है। वो इस तरह टेस्ट नहीं होता है कि खामखा वो मास्टर के स्टूडेंट्स या बैचलर के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, आप लोगों से वो जस्ट गपशप लगाते हैं, पूछते हैं कि क्या करना है, हंगरी में क्या करना है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि वो इंटरव्यू और वो टेस्ट ज़रूर बेहतर अंदाज में दे, क्योंकि इससे आप लोगों के मेरिट बनते हैं और मेरिट से फिर यहाँ पे आप लोगों को डरमेट्री और ये चीज़ें मिल जाती हैं। फिर बेहतर अंदाज में दे, जितनी बेहतर हो वो सही है। बाकी वो गपशप लगाते हैं, वो इंटरव्यू और टेस्ट में कोई फेल नहीं करता है, कोई भी फेल नहीं करता। तीसरी चीज़, जब ये मार्च और अप्रैल में तकरीबन हो जाता है, आप लोगों को यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस दे देती है और जून और जुलाई में आप लोगों को फिर पता चल जाता है कि मैं मुझे स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है। तकरीबन 400 स्कॉलरशिप होते हैं, इस दफ़ा 257 लोग आए हैं। मीन्स ये बाकी जो है ये हमसे मिस हो गए, सारे लोगों से मिस हो गए। फिर ये चीज़ आप लोगों के एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्टेंस में ये फिर डायरेक्ट आप लोगों ने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है और अपॉइंटमेंट से आप लोगों को ये वीज़े, स्कॉलरशिप के वीज़े की चांसेस 0.009% भी नहीं है, 1% भी है कि रिजेक्ट हो जाए। स्कॉलरशिप के वीज़े डायरेक्ट एक्सेप्ट होते हैं, डायरेक्ट लग जाते हैं, 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में लग जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। और ये सितंबर इनटेक होता है। अभी से आप लोगों ने एक टेस्ट रहता है, अभी से आप लोगों ने उसके लिए तैयारी करनी है और ये स्टिपेंडियम हंगेरिकन स्कॉलरशिप पे आप लोगों ने अप्लाई करनी है। बाकी रह गया स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप आप लोगों को एचईसी की तरफ से ये टिकट भी प्रोवाइड हो जाता है एक तरफ से इधर से, और जब डिग्री कंप्लीट कर वापस जाने का टिकट भी आप लोगों को मिल जाता है। इधर स्टिपेंडियम हंगेरिकन स्कॉलर्स वो हंगरी आप लोगों को राउंड अबाउट 1 लाख फॉर ये देते हैं एकोमोडेशन और खाने के, इसमें तकरीबन सब कुछ कवर हो जाता है। और मास्टर, स्पेशली मास्टर और पीएचडी वालों के तो ज़्यादा है, वो 185 समथिंग है, और मास्टर के लिए यही है और बीएस के लिए, बैचलर के लिए भी यही है। लेकिन एक चीज़ है, आप लोगों को यहाँ पे हफ्ते में 30
घंटे काम अलाउड है, मिनिमम 30 आवर, बाकी आप लोगों की जितनी मर्जी है, जितनी सकत है आप लोगों में वो कर ले। 3 महीने के सेमेस्टर होता है, 14 हफ्ते के, ये इसमें 2 एग्जाम होते हैं। मेड एग्जाम इधर बहुत ईजी है, वो आप लोगों को ये नहीं कहता है कि खामखा 30 क्वेश्चन प्रूफ करो, ये करो, वो जो प्रूफ ऑलरेडी दिया है वो सिर्फ ये कहे कि इसकी सही यूज करो, कहाँ पे यूज करते हो। बहुत ईजी है, एमसीक्यूज टाइप और थ्योरेटिकल वो आप लोगों को पास ही करते हैं, इतना कोई मसला नहीं है, एग्जाम वगैरह का कोई मसला नहीं होता है। दूसरी चीज, आप लोगों ने काम भी करना होता है साथ में। अभी 5 दिसंबर तक हमारा सेमेस्टर तकरीबन एंड हो रहा है, फिर 3 महीने छुट्टी है। घर भी जा सकते हो, अगर किसी के वो थोड़ा काम किया हो तो बर आसानी से घर भी जा सकते हो, वो इतना मसला नहीं है। हंगरी बेस्ट है, आप लोगों को यूरोप में इंटर होने का बेस्ट ऑप्शन है। फिर आफ्टर स्टडी आप लोगों को वो जॉब सीकिंग वीज़ा भी देते हैं, फिर आप लोगों को पीआर भी देते हैं। लेकिन ये ख्याल जहन से निकालो कि हंगरी आप लोगों को वो सिटीजनशिप वो चीज़ें दे देते हैं, वो नहीं देते हैं। वो फिर ये यहाँ पे लोग इधर उधर ये पुर्तगाल में एक्टिविटी ऑन करते हैं, जर्मनी में ऑन करते हैं, बहुत ज्यादा कंपनियां हैं वो आप लोगों को जॉब ऑफर करते हैं, पूरे यूरोप से आते हैं। अब पुर्तगाल की कोई कंपनी आ गई, आप लोगों को जॉब ऑफर की, तो आप गए उधर। जब आप उधर गए तो फिर वो तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सिटीजनशिप वगैरह दे देते हैं। वो इतना मसला नहीं है, वो लोग होते हैं सीनियर है, बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है। इधर सारे पाकिस्तानी, एक सोसाइटी बनी है, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है, बहुत इंडियन है, बांग्लादेशी है, वो आप लोगों को काफी गाइडेंस देंगे, उसका मसला टेंशन नहीं है। लेकिन सिर्फ पहले से पाकिस्तान से निकलना होना पड़ता है, और उसके लिए आप लोगों ने यूएसएट और हेड टेस्ट देने पड़ते हैं। अब अगर आप लोगों के लाइक यूएसएट और हेड टेस्ट किसी ने दिए हैं ऑलरेडी, तो वही चलेंगे। फरवरी में उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो आप लोग जाए बाहर, लाइक पार्ट टाइम जॉब इजी मिल जाता है। ये कमेंट किसी ने किया, बहुत इजी मिल जाता है पार्ट टाइम जॉब, या अप्लाई स्टूडेंट जॉब एजेंसीज होती है। हाँ, 24 साल से जो बच्चे कम होते हैं उस पर टैक्स लागू नहीं होता, और टैक्स लागू नहीं होता है मीन्स 27% टैक्स होता है। इधर जो कमाना पड़ता है उसमें 27% आपने टैक्स देना है। सारे आप लोगों के महीने के तकरीबन 3, 4, 5 लाख हर कोई इजीली कमा सकता है, ये 10 दिन काम करे। अब अगर कोई पूरा महीना काम कर ले तो वो तो बेहतर है, वो तो 6, 7, 8 तक जाते हैं। बाकी तो इतना मेरे ख्याल में कोई चीज नहीं रह गई है। अच्छा इशफाक भाई, उस्मान भाई। जी जी, हाँ इशफाक भाई मेरी आवाज़ आ हाँ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। जी इशफाक भाई, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हैट और यूएस एट का बता दें कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और इनकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से की जाए। लाइक बीएस वालों के लिए जैसे यूएस एट होता है और इसी तरह मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए हैट होता है, तो इनकी प्रिपरेशन के हवाले से चलो, थोड़ा सा बता दें। हाँ चलो चलो, वो मैं बता देता। हाँ, आप लोगों ने ये करना है कि यूएस सेट के लिए जो होता है, यूएस सेट के लिए उन्होंने अभी पैटर्न अगर चेंज नहीं किया हो तो उसमें ये 3 अक्सर इंजीनियरिंग का अपना होता है, यूएसए 1 होता है मेरे ख्याल में, और मेडिकल का अपना होता है, और कंप्यूटर वगैरह ये आर्ट्स वगैरह का अपना होता है। तो हर किसी का ये तकरीबन इक्वल होता है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि मेडिकल वालों को मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये एनालिटिकल रीजनिंग ये चीज़ें नहीं आती है, तो वो ये चीज़ें बहुत इजी डाल देते हैं। इजी चीज़ें होती है, जस्ट आप लोगों के उसमें बायो भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, फिजिक्स भी होता है, इंग्लिश भी होता है, और साथ में एनालिटिकल रीजनिंग। ये बीएस के लिए मैं जो कह रहा हूँ, एफएससी वालों के लिए ये चीज़ होती है। तो बहुत ये मेडिकल वालों के लिए अगर एनालिटिकल के मेरे ख्याल में कुछ 15, 12, 15, 17 एमसीक्यूज होते हैं। बाकी तो फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री ये तो आप लोगों की अपनी चीज़ है, आप लोगों ने खुद करनी होती है। एनालिटिकल पे आप लोगों ने एक जस्ट इशफाक भाई, ये यूट्यूब पे एक चैनल होता है। आवाज़ आपके बैकग्राउंड से आ रहा है। हाँ हाँ, ये इधर ये हमारा हॉस्टल है, बड़ा लोग आते हैं। चलो सॉरी इसके लिए। हाँ, मैं बताता हूँ कि यूएसएट के लिए आप लोगों ने तैयारी करनी है। फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री ये तो आप लोगों के अपने सब्जेक्ट से तैयारी करनी पड़ती है, वो तो
قسم قسم کی چیزیں دیتے ہیں لیکن ایزی دیتا ہے کمپیئر ٹو ادر چیزیں, یہ ایزی دے دیتے ہیں. انالیٹیکل کے لیے آپ لوگوں نے کوئی یوٹیوب چینل لیا, یوٹیوب چینل جسٹ وہ کوانٹیٹیو ریزننگ, انالیٹیکل ریزننگ, یہ کچھ 3-4 ٹائپس کے کویسچن ہیں. اب ایک بار آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں. یہ جنرل ہوتے ہیں, یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ فلانے کا کوئی باپ نہیں, بھائی نہیں ہے, بہن نہیں ہے, لیکن فلانے کا بیٹا فلانے کا باپ ہے. یہ اس طرح کے کویسچن ہوتے ہیں, وہ جنرل آپ لوگوں کی سائیکو چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, اس کے اپنے فارمولے ہیں. ایک چینل دیکھ لے, کچھ 4-5-6-10 تک ان کے ویڈیو ہوں گے یوٹیوب پہ, آپ لوگوں نے پلے لیسٹ دیکھنی ہوتی ہے. کیونکہ اس کا اپنا ایک, میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو ایک بک دے دو, کیونکہ وہ یوٹیوب والے ایزیلی سمجھا دیتے ہیں, بہت ایزی ہوتا ہے, بہت ایزی. آپ لوگ ایک بار اس کو دیکھ لیں. بیچلر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ماسٹر کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہیٹ 1 ہوتا ہے, ہیٹ 2 ہوتا ہے, ہیٹ 3 ہوتا ہے. ہیٹ 1, ہیٹ 2, ہیٹ 3 والے, یہ انجینئرنگ کا ہیٹ 1 ہوتا ہے, میڈیکل والا کا میرے خیال میں ہیٹ 2 ہوتا ہے, اور یا ہیٹ 3 ہوتا ہے. یہ آپ لوگ اسی سائڈ پہ دیکھ لیں. جو ہی آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ میں نے میڈیکل کرنی ہے, تو پھر وہ آپ ان کی ہی کے مطابق آپ لوگوں کو وہ ٹیسٹ دے دیتے ہیں. مینز ہیٹ 1 لکھا ہوتا ہے, یا ہیٹ 2 ہوتا ہے, یا ہیٹ 3 ہوتا ہے. صبر کر, یہ کچھ کمنٹ آ رہے ہیں, میں اس چیز پہ آ رہا ہوں کہ پروسیس وہ بھی بتا دوں گا. آپ لوگوں کے یہ جو ہیٹ 1, ہیٹ 2, ہیٹ 3, یہ عثمان بھائی اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈرائیو شیئر کروں گا, اس میں کچھ بکس بھی ہے. اتنے مشکل نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں مشکل نہیں ہے. اس میں یہ پاسٹ پیپر ہوتے ہیں, پاسٹ پیپر صرف چیک کر لے, اس کے مطابق آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے. یعنی وہ اگر آپ لوگ چیٹ جی پی ٹی کو دے دے, جیمنی کو دے دے, کوئی ایک چیز اے آئی ٹیکنالوجی کو دے دے, تو پھر وہ ایزیلی آپ کو سالو کر کے دے دیتا ہے کہ بس یہ اس طرح کویسچن ہے آتا ہے. صرف یہ وہ ہن سے ڈیجٹس چینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہہ دیتے ہیں کہ 25% آف 27, یا وہ کہتے ہیں 25% آف 35. یہی چیزیں ہوتی ہے, مشکل کوئی بھی چیز نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے تیاری کرنی. اس دفعہ میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, اس دفعہ 143 سیٹیں ضائع ہو گئی پاکستان سے, کیونکہ کوئی لوگوں نے اپلائی نہیں کیا تھا. اب اپلائی کرو. ہنگری میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اس پہ. پاکستانی لڑکے ماشاءاللہ سارے کلاسوں میں ٹاپر آ رہے ہیں, تقریباً ٹاپر آ رہے ہیں. وہ وجہ ہے کہ ہماری بیس بہت بن گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف وہی چیز ہم پریکٹیکل کرتے ہیں. لائک فار ایگزامپل 3rd ایکویشن ہوتا ہے, وہ ادھر پریکٹیکل آپ کو کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں تو وہ ہمیں پروف کرو, یہ کرو, یہ کرو, وہی چیز نہیں ہوتا ہے. باقی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرائیو بھی شیئر کروں گا. عثمان آپ لوگوں سے ڈرائیو بھی شیئر کرے گا, وہ بھی دیکھ لے. اس میں یہ صرف اس سے یہ آئیڈیا لے کہ کس طرح کے کویسچن آتے ہیں پاس پیپر سے, صرف وہ دیکھ لے. باقی آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل پہ دیکھ لینا ہے کہ انالیٹیکل ریزننگ کیا ہے, وہ ہوتا ہے. پروسیس یہ ہے, پروسیس آپ لوگوں کے سوری ایک چیز اور ہے. پروسیس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی 15 جنوری تک یہ اسٹیپینڈیم ہنگیریکن کے جو چیز آن ہے, وہ سائٹ آن ہے, اس پہ اپلائی کرنا ہے. یہ سیٹ والے پھر وہ خود ریزلٹ بھیج دیتے ہیں, اس پہ آپ لوگ اپلائی کر لے. اسٹیپینڈیم ہنگیریکن اسکالرشپ کا سائٹ بالکل HEC پہ پڑا ہوتا ہے, یا صرف یہ لکھتے اسٹیپینڈیم ہنگیریکن اسکالرشپ ڈریم اپلائی, تو پھر وہ کر دیتے ہیں. ہاں عثمان بھائی, ابھی ان سے پوچھے. جی اشفاق بھائی, ہاں آپ اس میں ان کو نا تھوڑا سا ڈاکومنٹس کے بارے میں بتا دیں کہ جیسے کہ آپ نے مختلف ڈاکومنٹس مینشن کیے, تو اس میں جو آپ کی سلیکشن میں سب سے زیادہ آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیز ہے جو رول پلے کرتی ہے, لائک یور لیٹر آف موٹیویشن ہے, یا نہیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں اسٹوڈنٹس کو. نہیں, ہاں سوری اس کے لیے کہ آپ لوگوں کے کوئی موٹیویشنل لیٹر, سی وی, یہ ماسٹر والوں کے لیے تھوڑا یہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھتے ہیں ہم اکثر, یا کوئی دوسرے دے دیتے ہیں, پھر اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. اس کا مسئلہ نہیں. سب سے پہلے سلیکشن آپ لوگوں کی ہوتی ہے یو ایس ایٹ اور ہیڈ ٹیسٹ کے لیے.
पीएचडी वालों के लिए एक चीज़ यह है कि आप लोगों ने फिर अभी से टीचरों से हर डिपार्टमेंट खोल दे और अपने फील्ड के रिलेटेड प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले ले। अब एक्सेप्टेंस पीएचडी वालों को मिलती है तो बेहतर है, न मिले तो एमएस पे आ जाए। एमएस पे आ जाए फिर यही पीएचडी वाली आसानी से मिल जाता है, दूसरा एमएस कर ले, क्योंकि पाकिस्तान में अब अगर आपको 14 साल के वो बैचलर की न मिली, 16 साल के फिर मास्टर की उस पे जॉब न मिली हो, फिर इधर दूसरा मास्टर करे, कोई मसला नहीं है। ज्यादातर लोग इस तरह आते हैं, मास्टर कर देते फिर मास्टर कर देते। इधर हर बंदे के साथ 4-4 5-5 डिग्री होती है। कोई उधर मेडिकल से आता है, इधर इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग से आता है उधर मेडिकल करता है। तो ये मसला नहीं है उसमें। दूसरी चीज, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पाकिस्तान से होता है और वो यूएसएट और हेड टेस्ट से होता है। इधर से सिलेक्शन हो गई, उधर नाम भेज दिया हंगरी में, इधर फिर हाँ मेडिकल वालों के लिए मेडिसिन में थोड़ा शायद आप लोगों का वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, लेकिन अगर क्योंकि मेडिसिन का पाकिस्तान के में स्पेसिफिक सीट्स होते हैं, उसमें अगर सारे बंदे पंजाब से आ गए सारे या केपी से आ गए या तो आपको दूसरी फील्ड में भेज देते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी इधर एक्सेप्टेंस भी देते हैं। ये सीटें उन्होंने दी हुई है पाकिस्तान को, 400 से ज्यादा लड़के आ नहीं सकते, और 400 में आप लोगों ने अगर आ गया यूएसएट और हेट में तो फिर कोई इस तरह चीज नहीं है जो आपको रिजेक्ट करे। अच्छा ठीक है, मतलब आपका जो मेन उस्मान भाई, चीज़। और कोई इसमें रह गया जी। कोई चीज? तो इसमें यानी कि जो मेन चीज़ रोल प्ले कर रही है वो आपका हेड टेस्ट और यूएसए टेस्ट जो है वो रोल प्ले कर रहा है। हाँ हाँ, वही चीज प्लेयर रोल प्ले कर रहा है। किसी ने दिया हो ऑलरेडी, मार्क्स अच्छे हैं तो बेहतर है, किसी ने नहीं दिया हो तो ये फरवरी वाला आप लोगों के लिए रहता है। अभी एक ही टेस्ट रहता है इस साल के, फिर वो नेक्स्ट आप लोगों ने फिर वो नेक्स्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है, 7-8 फिर वो देना है, वो नेक्स्ट 226 सितंबर में आप लोगों ने आना है। तो वो मतलब बहुत दूर है अभी, तो आप उस वक्त कंपटीशन क्या होगी वो पता नहीं चलता है। लेकिन अभी कंपटीशन नहीं है, आप लोगों ने फरवरी में टेस्ट देना है। जिसके मार्क्स कम है, जिसके ज्यादा है वो भी दे दे, इम्प्रूव करे अपने मार्क्स। अब फॉर एग्जांपल फाटा से एमएस के 2 सीटें हैं, किसी ये भी पॉसिबल है कि 60-60 पे नंबर पे बंदे आ जाए, क्योंकि पिछले मर्तबा मैं वेटिंग पे रह गया था, इस दफा मैं वही पुराने टेस्ट पे आ गया। 2 साल के लिए वैलिड होता है, क्योंकि इस दफा किसी ने टेस्ट नहीं दिया था फाटा से, तो मैं आ गया इधर। इस तरह आप लोगों के शायद सीटें खाली हो आ जाए, ना हो खाली तो फिर तो जिसके जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतना ही उसको प्रायोरिटी मेरिट पे ही मिल जाता है। कोई इसमें मसला नहीं है, यानी मेरिट बनता है, सिर्फ टेस्ट का मेरिट बनता है। ये नहीं होता है कि आप लोगों का वो एफएससी मार्क्स काउंट करे, मैट्रिक का मार्क्स काउंट करे ना। एक बात और है, अगर किसी बंदे के किसी 2-3 बंदे के सेम मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स आ गए, तो फिर वो देखते हैं कि किसके एफएससी मार्क्स ज्यादा है बैचलर वालों के लिए, और मास्टर वालों के लिए फिर ये होता है कि किसकी जीपीए ज्यादा होती है। यही चीज ये सिर्फ उस वक्त काउंट होती है, बाकी कोई काउंट नहीं होती इसमें। अच्छा इशफाक भाई, इसमें जो है सारे इस प्रोसेस के बाद लाइक जैसे आपने बताया कि इसमें जो एचईसी का टेस्ट होता है बैचलर्स वालों के यूएस सेट, और इसी तरह मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए जो हेट होता है, तो इन टेस्ट के बाद जो है कोई फर्दर इंटरव्यू वगैरह भी लेती है यूनिवर्सिटी, और अगर लेती है तो उसकी तैयारी किस तरह से की जाए? नहीं, वो इस तरह होता है कि यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटियां इंटरव्यू लाइक मैं कहता हूँ मेडिसिन के लिए जरूरी है इंटरव्यू, क्योंकि मेडिकल पे मेडिसिन पे आप लोगों का कंपटीशन ज्यादा होता है। सेम नर्सिंग का भी होगा, बीएमई से भी हमारे इंटरव्यू हो गए थे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी इस तरह है जो दूर दूर देहात में होते हैं, वो बस जस्ट आपको एडमिट करते हैं, वो इंटरव्यू भी नहीं लेते। इंटरव्यू की वो पहले भेज देते हैं कि हम फलाने तारीख को हमने अपने आपसे इंटरव्यू लेनी है और ये टॉपिक देख ले, हमने इस टॉपिक से आप लोगों की इंटरव्यू लेनी है। तो वो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। जैसे मैं अब मास्टर का स्टूडेंट हूँ, मैं बैचलर से इंटरव्यू ले रहा हूँ, अब खुद सोचे मैं पाकिस्तान से इंटरव्यू ले रहा हूँ तो क्या पूछूंगा। मास्टर में एफएससी मैंने 5 साल 10 साल हो गए कि मेरे भूल गया हो, यही पूछूंगा कि फोर्स क्या है, मास क्या है, ये वेट क्या है, यही चीजें पूछूंगा। तो इस तरह पीएचडी मास्टर वालों से पीएचडी वाले ले रहे हैं। अब पीएचडी हर किसी के अपने फील्ड होता है, मास्टर में वो नहीं घूम सकते, मास्टर
ایک الگ فیلڈ ہوتا ہے, پی ایچ ڈی کا اپنا فیلڈ ہوتا ہے. تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, صرف آپ لوگ یہ سیٹ اور ہیڈ سے پاس ہو کے پھر ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے, بہت ایزی ہے. پھر یونیورسٹی آپ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جی اشفاق بھائی. اچھا اشفاق بھائی, اس میں ہمارے بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ اس چیز سے کنفیوز ہوتے ہیں تھوڑا کہ انہیں ایچ ای سی کے ساتھ ایک بانڈ ٹائپ سائن کرنا پڑتا ہے. لائک وین دے آر سلیکٹڈ فار اسکالرشپ دے ہیو ٹو سائن اے بانڈ. تو اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس کے جو مائنڈ میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہاں بانڈ کیا ہوگا. ہاں ہاں, اس کے لیے آپ لوگوں نے ابھی سے کسی کا بہن ہو, بھائی ہو, والد ہو, والدہ ہو, یہ اگر 3-4 مہینے کا وہ بینک اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں. بینک اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں مانگتے, وہ ریگولر فار ایگزامپل 20,000 نکالے ہیں, 25,000 ڈالے ہیں, کچھ اس طرح. وہ جو نارمل روٹین میں ہم ہوتے ہیں کہ یار بندہ بالکل بزنس ہے, بندے کو اگر ادھر کوئی 20,000 50,000 روپے کم ہو جائے تو پھر فیملی سے ہی سپورٹ مل جاتی ہے. لیکن اس چیز کی بھی اتنی وہ ایشو نہیں ہوتی ہے. یہ ایچ ای سی والے کرتے ہیں, ایچ ای سی والوں کے ساتھ وہ پھر ہنگری ایمبیسی میں بیچتے بھی نہیں ہے یہ چیزیں. ہنگری ایمبیسی میں آپ کے ہاں ایک وہ ہوتی ہے, ایچ ای سی والا آپ سے ایک 217 آفیسرس کی ایک ذمہ داری لیتی ہے, اور ساتھ ساتھ میں یہ لیتے ہیں کہ کوئی اس طرح بینک اسٹیٹمنٹ دے دے کسی بندے کا کہ یہ 20 لاکھ 25 لاکھ تک ہو, کسی دوست کا ہو, کسی والد کا دوست کا ہو, وہ میرے خیال میں مل جاتے ہیں. میں نے خود بھی کسی دوسرے پرائے بندے کے دوست کے اکاؤنٹ جمع کروائے تھے, کیونکہ میرے نہ اپنے بھائی کے تھے, نہ والد کے تھے, اور نہ والدہ کے تھے. اپنا اکاؤنٹ بنوانا پڑتا ہے. ابھی اپنا اکاؤنٹ بنا لے, اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال دے, 20,000 ڈال دے, 50,000 ڈال دے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اوکے اشفاق بھائی. ابھی اس کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے جو بیچلرس تھا آپ کا وہ پاکستان سے تھا, اور آپ کا جو ماسٹرز ہے وہ ہنگری میں ہے, تو دونوں کی اگر ہاں ایجوکیشن کو آپ کمپیئر کریں تو کس طرح سے کریں گے؟ اور اس کے علاوہ ہنگری میں آفٹر اسٹڈیز آپ کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ یار یہ ادھر کچھ یہ سوڈان والے بہت زیادہ شور کرتے. مسئلہ یہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ میں اکثر دوستوں کی کہتا ہے کہ پاکستان میں ہم تھیوریٹیکل بیس ہماری کافی مضبوط ہے. یعنی میتھمیٹکس, میں نے انجینئرنگ کی ہے, میتھمیٹکس ہماری کافی مضبوط ہے. لیکن وہاں پہ ہم پریکٹیکل یوز کبھی ہم نے لیب نہیں دیکھی ہے. ادھر جو چیز آپ نے کرنا ہے وہ لیب میں بھی کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل میٹ لیب موسٹلی آپ لوگوں نے شاید بیچلر والے یوز کرتے ہیں, فیسی والوں نے یوز نہیں کیا. یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, یہ یہاں پہ ایز اے کیلکولیٹر یوز ہوتا ہے, ہائر کیلکولیشن کے لیے ہوتا ہے. وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ جو چیز اویلیبل ہے آپ کو اس سے ہیلپ لے لیں, لیکن کوئی وہ ٹیکنالوجی آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کا یوز اس طرح ہے. اور ہنگری میں باقی بیس ہماری مضبوط ہے, بہت زیادہ مضبوط ہے. تھیوریٹیکل ہم کافی مضبوط ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ادھر پاکستانی میں نے آلریڈی بتایا کہ پاکستانی ٹاپر ہوتے ہیں, اور ٹاپر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے ادھر یہ تھیوری یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے, رٹے لگائے ہوتے ہیں, سب کچھ کیا ہوتا ہے. لیکن پریکٹیکل ہم نے کوئی وہ نہیں کیا ہوتا ہے, فیل یا دیکھا نہیں ہوتا. کوئی ڈاکٹر فارغ ہو جاتا ہے یہاں پہ پاکستان میں, لیکن انہوں نے پریکٹیکل انجیکشن بھی نہیں لگایا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. ادھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں ڈاکٹر, تو مینس پریکٹیکل ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. آپ یوز پریکٹیکل کرتے تھے. تیسری چیز ایک یہ ہے کہ بیچلر کے یہ اسٹڈی کے بعد آپ لوگوں کو 1 سال کا ویزا وہ دیتے ہیں کہ آپ جاب سیکنگ ویزا وہ ایکسٹینڈ کر دیتے 1 سال کی. ہر سال یعنی یونیورسٹی میں لوگوں کے جاب لگ جاتے ہیں. کوئی بھی پاکستان واپس نہیں کیا ہے, سارے ادھر ہی جاب کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہ ایشین ہمارے یہ ادھر زیادہ تر ڈیلیوری جاب کر دیتے ہیں, اور ڈیلیوری جاب اس وجہ سے کرتے ہیں, یہ وولٹ آئی ڈی وغیرہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 7-8 لاکھ روپے ماہانہ کمانا پڑتا ہے, اور ایزی ہوتا ہے. جاؤ بس نکلو, بس کام کیا, واپس آ گئے, بس پھر سو جائے پھر جائے.
یہ ریگولر جاب کوئی کرتا ہی نہیں ہے. ریگولر جاب اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کیونکہ اس میں بندہ یہ کہتا ہے کہ کیوں 10 گھنٹے یار خوار ہو رہے ہو, 5 گھنٹے میں یہ ڈیلیوری سے ایزی کمپیئر ہو جاتا ہے. سو وہ نہیں ہوتا ہے. باقی ہر سال ہر یونیورسٹی میں 200+ کمپنیاں آ جاتی ہے اور وہ سلیکشن کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ جاب ایجنسیز ہوتی ہے, ادھر آپ نے سی وی بھیج دی. ہر کسی کا اسٹوڈنٹ پہلے مہینے میں, اب ہمارے 2 مہینے ہو گئے ہم آئے, ہر کسی کے ہر بندے کی جاب لگی ہے, ہر بندے کی جاب لگی ہے. تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں بیچلر والوں کے لیے یہ تھوڑا میں بتا دوں کہ اسپیشلی میڈیکل کے لیے کہ تو آپ لوگوں نے زیادہ تر چھٹیوں میں ہی کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بیچلر کی تھوڑے اسٹڈی تھوڑا بہت ٹف ہوتا ہے, وہ ریگولر ہوتا ہے. ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اس میں ایزیلی بندہ آرام سے, کیونکہ پورے ہفتے میں 3-4 کلاسز ہوتے ہیں, بس پھر جاب کرو کیوں کرو, باقی تو تھیسز وغیرہ وہ آسان ہو جاتے ہیں. اچھا اشفاق بھائی, ایک ہاں اسٹوڈنٹ کا کوشچن آیا ہے کہ ایچ ایس ہاں سی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے واپس آنے کا آفٹر کمپلیشن آف اسٹڈیز, یعنی کہ ہاں جب آپ کی اسٹڈیز بالکل کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ نے ہاں پاکستان واپس آنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں کہ از دیٹ ٹرو کہ آپ کو فوراً اسٹڈیز کے بعد واپس آنا ہوتا ہے, یا آپ وہاں پہ آ نہیں کے موو کر سکتے ہیں, اور یا وہاں پر جاب سیکر جو ہے ویزا تھرو رہ سکتے ہیں؟ نہیں, ایچ سی کے ساتھ جو بانڈ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں, لگاتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کی یعنی یونیورسٹی والے وغیرہ بھیج دیتے ہیں تو پھر وہ واپس آپ نے 5 سال ادھر جاب کرنا ہوتا ہے. لیکن جو ہم نارمل اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. ہاں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بس ادھر آ جاتے پھر ڈگری نہیں کرتے, بس ورک ویزے پہ کنورٹ کر دیتے زیادہ تر موسٹلی, تو پھر وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کرتے. پھر